نماز فجر میں ناغہ نہیں ہے، یہ نوست کی بنیاد ہے۔ نماز فجر نہ پڑھنا سورج نکلنے سے پہلے یہ کسی بھی شخص کے خبیث ہونے کی علامت ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں خبیث آدمی، رسول پاک فرماتے ہیں یہ منافق آدمی ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے اس کی لاش کو میں آگ لگا کے جلا دوں۔ جو فجر کے ٹائم سویا ہوتا ہے، جو فرشتے رزق بانٹنے آتے ہیں نا، وہ رزق لے کے اس کے منہ پہ مارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ہاں، اس کے چہرے پر سے اللہ صلحاء کا نور ہٹا دیتا ہے، صلحاء کا نور ہٹ جاتا ہے اس کے چہرے سے، جو جان بوجھ کے فجر کی نماز کو قضا کرتا ہے۔ یہ ایسا گندا انسان ہے کہ شیطان نے اس کے کانوں میں پیشاب کر دیا۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی نے جتنی برکت مانگی ہے فجر کی نماز کے ٹائم پر مانگی اس امت کے لیے۔ تو میرے نوجوان بھائیو، آپ رات گئے تک واٹس ایپ استعمال کرتے ہو، فیس بک اور چینلز پہ بیٹھے رہتے ہو، چلے میں آپ کو ان چیزوں سے نہیں روکتا، لیکن اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں پوری دنیا میں جہاں تک میرا پیغام جائے، کوئی میری مسلمان بیٹی بہن میرا بھائی مجھے سنے تو میں اسے 1000 بار یہ کہوں گا کہ نماز فجر سے پیار سیکھو، اس وقت رویا کرو، فجر کی سنتیں پڑھا کرو۔ مالدار وہ نہیں ہے جو ملک کا وزیر اعظم ہے، مالدار وہ نہیں ہے جس کا ڈالروں میں بینک بیلنس ہے، ایسا نہیں ہے۔ مالدار وہ ہے جو صبح کی نماز سے قبل 2 سنتیں ادا کرتا ہے۔ دنیا اور دنیا کے خزانے بھی ایسے شخص کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو صبح کی 2 سنتیں فرض سے پہلے ادا کر لیتا ہے۔ اتنا سکون ہے نا اللہ نے فجر کی نماز میں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر یہ نماز اللہ نے فرض نہ بھی کی ہوتی، خدا کی قسم اس کی دنیا کے فائدے اتنے ہیں کہ یہ نہ بھی فرض ہوتی تو بھی پڑھتے۔ یہ اتنا پیارا طریقہ نماز کا رکھا گیا ہے، کتنا پیارا، اور وقت کتنا بہترین ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، قرآن کہتا ہے فجر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ فجر کی پہلی 2 سنتیں کبھی نہ چھوڑنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری رہ گئی ہیں، رہ جاتی ہیں۔ فرمایا فجر کی 2 سنتیں نہ چھوڑنا۔ فرمایا فجر کی پہلی 2 سنتیں مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سے زیادہ پیاری ہے۔ الصبح بدا من طلعته۔ یہ جنازہ پڑھنے آئے نا، تو جنازہ تو فرض کفایہ ہے، اور نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے بھائی؟ فرض عین ہے۔ یہ سب اپنے آپ سے پوچھیں آج فجر پڑھی آپ نے؟ اگر آپ نے فجر نہیں پڑھی تو آپ جنازے میں کیا کرنے آئے ہو؟ شکل دکھانے آئے ہو؟ ایک آدمی 100 روپے کی تو فکر کرے، 1,00,000 روپے کی فکر نہ کرے، کیا کوئی رسم ہے؟ آج اتنا رسم اور رواج میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جنازے میں بھی شرکت رسم بنا لی ہے، ایک رواج ہے۔ ابھی جنازہ پڑھیں گے، عصر پھر نہیں پڑھیں گے، ابھی جنازہ پڑھیں گے، فجر میں پڑھے سو رہے ہوں گے۔ یہ پتہ کون ہے؟ ڈھیٹ ہو گئے ہیں، دل گندے ہو گئے ہیں، دل سیاہ ہو گئے ہیں، دل پتھر ہو گئے ہیں، دل زنگالود ہو گئے ہیں، دل تباہ ہو گئے ہیں۔ کوئی ہوش میں آئے، ہوش میں آئے۔ نشے میں آدمی ہوتا ہے نا، نشے میں تو بات سمجھ میں نہیں آتی اس کی، کیونکہ نشہ ہے۔ نشہ صرف شراب اور چرس کا نہیں ہے، یہ پیسہ بھی نشہ ہے، یہ جوانی بھی نشہ ہے، یہ کاروبار بھی نشہ ہے، یہ جہالت بھی نشہ ہے۔ آج لوگ نشے میں، جو اذان سن کے نماز پڑھنے نہیں جاتا یہ نشے میں ہے، جو فجر میں نہیں اٹھتا نماز نہیں پڑھتا یہ نشے میں، یہ ٹن ہے۔ اور اگر ان باتوں کو سن کر اس کا نشہ نہ ٹوٹا تو موت کا فرشتہ اس کا نشہ توڑے گا پھر، اور اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ نماز 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 5 وقت، کوئی گنجائش نہیں نماز چھوڑنے کی۔ آپ بوڑھے ہو، بیمار ہو، نماز پڑھو۔ وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر، نماز پڑھنی ہے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ، نماز پڑھنی ہے۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ، نماز پڑھنی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ جنازوں میں بڑے اہتمام سے آتے ہیں اور بیان بھی سن چکے ہیں 1000 دفعہ، لیکن فجر نہیں پڑھتے، زور میں نہیں اٹھتے دکان سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز آپ کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے۔ آپ سے فجر میں اٹھنا مصیبت بنا ہوا ہے، آپ سے اذان سن کے دکان چھوڑنا مصیبت بنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی تو فرمائے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،
आपने फरमाया इस्लाम और कुफर में फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे, अगर आपने आज फजर नहीं पढ़ी, आप कुफर की तरफ जा रहे हो। ये जनाजा पैगाम है, होश में आओ, नमाज पढ़ो, दीन सीखो। नमाज के फ़राइज़ सुनाओ, नहीं आते? क्यों नहीं आते? सीखे नहीं? दीन सीखो, ये पैगाम है। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। ये कब्र में अखबार नहीं, ये मोबाइल नहीं काम आएगा। कुरान 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 कुरान। साल ख़त्म हो रहा है, मियाँ साहब का, शेख साहब का कुरान ख़त्म नहीं होता है। सुबह उठते ही कुरान नहीं खोलता है, मोबाइल खोलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान पढ़ा करो, ये क़यामत के दिन तुम्हारे लिए सिफारिश करेगा। आपने फरमाया जो रात को सूरह मुल्क पढ़ेगा, अल्लाह उसे कब्र के अजाब से बचा लेंगे। कुरान पढ़ो भाई, अल्लाह का जिक्र करो। हाथ में तस्बीह नजर आनी चाहिए। मोबाइल भी रखो, तस्बीह भी तो रखो। सबकी जेबें चेक करो, दो दो मोबाइल निकलेंगे, तस्बीह एक भी नहीं निकलेगी। किसी को मोबाइल तोहफे में दो, बड़ा खुश होता है। किसी को तस्बीह तोहफे में दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो 100 मरतबा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, फरमाया जो 100 मरतबा रोजाना पढ़ेगा, जब क़यामत के दिन उठेगा तो उसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत की चाबी ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने फरमाया जन्नत की कीमत ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने फरमाया ईमान को ताज़ा करते रहा करो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ईमान को ताज़ा करते रहा करो। जैसे जिस्म को ताज़ा करते हो, कपड़े बदलते हो, घर की सफाई करते हो, अपने ईमान को भी ताज़ा करो। सहाबा ने अर्ज़ किया हुज़ूर ईमान को कैसे ताज़ा करें? आपने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह। इसको 10 दफ़ा, 50 दफ़ा, 100 दफ़ा नहीं, फरमाया कसरत से पढ़ा करो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जितना कसरत से पढ़ोगे तुम्हारा ईमान ताज़ा होता रहेगा। तस्बीह करें मेरे भाइयों, जिक्र से दिल नरम पड़ता है। फिर दीन का शौक़, फिर मस्जिद का शौक़, फिर नमाज का शौक़, फिर गुनाहों से नफरत आती है। अगर आपका नमाज पढ़ने को जी नहीं चाहता ना, आपका दिल सख्त हो गया है। आपका मस्जिद आने को जी नहीं चाहता ना, आपका दिल तबाह हो गया, बर्बाद हो गया है। दिल की सफाई करो कुरान से, दिल की सफाई करो अल्लाह के जिक्र से, दिल की सफाई करो मौत की याद से। आपने फरमाया कब्रिस्तान जाया करो। अभी तो जनाजों में भी बड़ी मुश्किल से जाते हैं, थोड़ी देर के लिए। अकेले जाओ कब्रिस्तान, हिम्मत है तो मगरिब के वक्त जाओ और अपने आप को समझाओ मुझे भी यहाँ आना है। ये कौन पड़े हुए? बड़ी प्लानिंग करते थे, बड़े कह लगाते थे, जो क्या कहते थे मेरे पास नमाज पढ़ने को वक्त नहीं है, सुबह मेरे से फजर में उठा नहीं जाता। ये पड़े हुए कब्रों में, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र मुर्दे को अपने हाथ से गुस्ल दिया करो। मोहल्ले में ना तलाश करो गुस्ल देने वाला कौन है, तेरा बाप था खुद दे, तेरा चचा था खुद दे। अपने हाथ से गुस्ल दे ताकि इबरत हो, क्या अकड़ थी, क्या नखरे थे, और क्या आज फट्टे पर बेबसी है। हम सब फट्टे पे पड़ने वाले हैं एक दिन। मसीह में 2 फट्टे नहीं हैं, रेड़े वाली का फट्टा और है और मिल मालिक का फट्टा और है। मसीह में 2 चारपाइयाँ नहीं हैं, गधा रेड़ी वाला भी इसी चारपाई पे, और चौधरी साहब, मियाँ साहब, कर्नल साहब, जनरल साहब भी उसी चारपाई पे। ये मौत पैगाम है, तौबा करो, अल्लाह को राज़ी करो, गुनाहों से बचो, अपने अखलाक अच्छे बनाओ, झगड़े ख़त्म करो। भाई भाई में झगड़ा, भाई भाई से बोलचाल बंद। एक घर में रहते हैं, बात नहीं करते। मर जाना है, क्या अकड़ मकड़, मैं क्या मैं, मर जाना है। तेरा बेटा तेरे पे मिट्टी डालेगा, तेरा नौकर तेरे पे मिट्टी डालेगा, अपने हाथ भी तेरी कब्र पे झाड़ेगा। क्या अकड़ मकड़ भाई। अखलाक अच्छे बनाएं, झगड़े ख़त्म करें, अपनी कमाई को पाकीज़ा बनाएं, किसी का हक ना दबाएं, किसी का हक ना दबाएं। कितने लोग हैं पैसे देने लोगों के, नहीं दे रहे, नहीं दे रहे, नहीं देते। एक हराम का लुक़मा है, 40 दिन तक इबादत कबूल नहीं होनी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे में ये नहीं फरमाया करते थे ये जो मरने वाला है इससे ये नमाज पढ़ता था कि नहीं, ये रोज़ा रखता था कि नहीं। आपने ये ज़रूर फरमाया ये मरने वाले ने लोगों के पैसे तो नहीं देने। एक मौके पे जवाब आया हुज़ूर इसने लोगों के पैसे देने। आपने फरमाया मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊँगा। इतनी सख्त बात है। आज कितने लोग हैं पैसे देने नहीं देते। सगी बहनों को विरासत में हक नहीं देते। लोग हज पे जा रहे हैं, उम्रे कर रहे हैं, पहली सब में नमाजें पढ़ रहे हैं, बहनों का हक दबाया हुआ है। ये डाकू है, डाकू। हाँ, बहनों का हक दो मेरे भाइयों। अपनी कमाई को पाकीज़ा बनाएं, अपने फंक्शनों को म्यूजिक से पाक करें। ये जहाँ शादियों में फंक्शनों में म्यूजिक चल रहा होता है, कौन लोग बैठे होते हैं? यही लोग बैठे होते हैं। इन्हीं में से हैं जो बैठे होते हैं, इन्हीं में से हैं जो बैठे होते हैं। जहाँ नाच गाना है, जहाँ म्यूजिक है, जहाँ ढोल ढमक्का है, अपने अंदर ईमानी गैरत पैदा करो, ईमानी जुर्रत पैदा करो। ऐसे फंक्शन में नहीं बैठना जहाँ म्यूजिक चलता है, जहाँ नाच गाना होता है। ये मौत का पैगाम है। तौबा कर लो।
तौबा कर लो। एक सहाबी ने अर्ज किया, हुजूर मुझे नसीहत फरमाएं। आपने क्या फरमाया? नमाज पढ़ो तो ये समझकर कि जिंदगी की कौन सी नमाज है? आखिरी। पता नहीं किसकी आखिरी जोहर है, किसका आखिरी दिन है। मरने वाले बूढ़े नहीं, जवान भी हैं, बीमार नहीं, तंदुरुस्त भी हैं, गरीब नहीं, अमीर भी हैं, फारिग नहीं, मसरूफ लोग भी मर जाते हैं। दूसरों का जनाजा पढ़ाने वाले, उनका भी जनाजा होता है। दूसरों को कंधा देने वाले, उन्हें भी कंधे पे उठाया जाता है। इबरत का सामान है मेरे भाइयों, जहाँ सारा इबरत ही इबरत है, जहाँ में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। बचपन ने पहले तुझको बरसों खिलाया, जवानी ने फिर आके तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके तुझको क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। हम सब ने मरना है मेरे भाइयों, तौबा करें। ये सारा मजमा नियत करे अल्लाह को राज़ी करना है इंशाअल्लाह। आखिरत की तैयारी करनी है भाई। 5 वक्त नमाज, आवाज़ में करंट नहीं आ रहा है, ये सारे फजर में कहाँ होने चाहिए? और पढ़ोगे तो फ़ायदा किसका है, और नहीं पढ़ोगे तो नुकसान किसका है? आप कारोबार में नफ़ा चाहते हो, नुकसान चाहते हो, और फजर नहीं पढ़ते हो आप, हैं? बेवकूफ़ है, नादान, जाहिल है, अहमक है जो फजर पढ़े बगैर दुकान पे जाता है। इसको रिज़्क़ की तलाश है और ये रज़्ज़ाक़ की नाफरमानी करता है। 5 वक्त नमाज पढ़ो मेरे भाइयों। फिज़ा बनाओ आपके मोहल्ले में, आपकी मार्केट में कोई भी नमाजी ना हो। अपने अखलाक अच्छे बनाओ। ये जितने बैठे हुए हैं, जिसका झगड़ा चल रहा है, सब नियत करो झगड़ा ख़त्म करना है इंशाअल्लाह। ख़त्म कर दो, माफ़ कर दो। हदीस में आता है तुम लोगों को माफ़ करो, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। नरमी करो लोगों के साथ, अखलाक अच्छे बनाएं, अपनी कमाई को पाकीज़ा बनाएं। जिसने लोगों के पैसे देने, प्लाट बेच दो, घर बेच दो, गाड़ी बेच दो, जेवर बेच दो, लोगों के पैसे दो। धोखे में ना रहो, धोखे में ना रहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ निगाह उठाई और ये हाथ यूं माथे पे रखा और फरमाया कि उफ़ो, बड़ी सख्त चीज़ नाजिल हुई। सुभान अल्लाह, बड़ी सख्त चीज़ नाजिल हुई। साहबा ने अर्ज़ किया, हुज़ूर क्या सख्त चीज़ नाजिल हुई? फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और मुझे ये बतला गए, अगर कोई आदमी अल्लाह के रास्ते में जाए और शहीद हो जाए और फिर जिंदा किया जाए और फिर शहीद कर दिया जाए, अगर उसके ज़िम्मे कर्जा है, जब तक उसका कर्जा अदा नहीं होगा उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी। लोगों के पैसे दो मेरे भाई। तबलीग क्या है? तबलीग क्या है? ये पैगाम लोगों तक पहुँचाओ, ये तबलीग है। तौबा कर लो भाइयों, अल्लाह को राज़ी कर लो भाइयों, आखिरत की तैयारी कर लो भाइयों। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है। रक्शे के पीछे लिखा होता है अकल नहीं थे मौजें मौजा। अभी बात सुनी और असर ना पड़ी, अभी बात सुनी फजर में पड़ा सो रहा है, ये पता कौन है? अकल नहीं थे मौजें मौजा, अकल नहीं थे मौजें मौजा। अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए दे, उनकी आखिरत की घाटियाँ आसान फरमाए दे, घर वालों को सब्र जमील की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह इस सारे मजमे की तौबा को कबूल फरमाए। अल्लाह हम सबको मरते वक्त कलमा नसीब फरमाए।